Hello, friends. Once again, a very warm welcome to you all. We are discussing about some very important concepts related with literary theory, and in the last video, we saw the basic assumptions related with deconstruction. We will carry forward our discussion on deconstruction. Here, in this flowchart, you can see the process of deconstruction. That actually, before deconstruction, a text has a duality dominant term, which basically means there is basically a hierarchy, a binary opposition. In that particular thing, there is a hierarchy, there is a dominant voice, or a dominant story, or a dominant plot, or a dominant principle. Okay, and what happens? The deconstruction process try to find the duality marginal missing term, the term which was basically ignored in this process, and there is reinterpretation of hierarchy, and this reinterpretation makes it possible that we can find the marginal or the missing dominant, and that is why हम देख पाते हैं कि there is a duality. It is not a singular, it is not one point of view, it is not absolute point of view, there is duality. Actual में दोनों terms जो हैं they both have validity of their own. Other side of the story being told to the dualized hierarchy and dominant voice. जो voice अब तक suppressed थी, center ने जिसको margin पे रखा हुआ था, that voice gets its chance to present its story, और ये उसके बाद deny the dominant plot with counter plots. जिसको हम अभी तक dominant में थे उसको हम deny करते हैं, उसको हम shift कर देते हैं center से margin की तरफ, and find the exception to the dominant principle और universal essentialism, जिसको हम अभी तक ट्रुथ्स बोल रहे थे, या फिर हम मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था. ऑल दीज थिंग्स दे आर क्वेश्चनड. ये बेसिक एक डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स डरिडा के द्वारा यूज की गई थी. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स in this and coming videos. So let's start our discussion. Okay, first of all, a very brief introduction to that particular event. I would use that term which Derrida himself used, event. The first event in which Derrida exposed the troubles in the Western philosophy, it actually took place in 1966. आप सभी who are basically preparing for NAT or who are in literary theory, they know very well this particular occasion. John Hopkins University के अंदर Derrida presented his paper on structure, sign and play in the discourse of the human sciences. It was the name of paper, and he launched his event. He didn't call this a new theory or a new proposition. It is basically a non-theory, a non-method, non-position, non-conception, non-doctrine, non-ideology, non-viewpoint, non-structure, non-technique. Basically deconstruction is against any such labeling. Deconstruction जो process है उसका जो basic assumption है वो यही है कि whenever we call for a particular theory, for a particular concept, we are basically establishing a center. हम खुद क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम काउंटर लेकर आते हैं किसी चीज़ का, तो what happens, केवल रिवर्सल ऑफ हायरार्कीज होती है. जो चीज़ मार्जिन पे थी वो सेंटर में आ जाती है, और जो चीज़ सेंटर में थी वो मार्जिन पे चली जाती है, बट स्टिल देयर इज अ सेंटर, एंड इट इज़ अगेंस्ट दिस टेंडेंसी. इस टेंडेंसी के खिलाफ ही डरिडा जो है इसको बोलते हैं दैट इट इज़ अ नॉन थियरी. In Derridian writings, a structure becomes an event, not a concept or doctrine or principle or a viewpoint, but rather an event. An event जिसके अंदर सेंटर जो है उसको हमने क्या कर दिया है, उसको रप्चर्ड कर दिया है, उसको अपने प्लेस से हटा दिया है, एंड देयर इज नथिंग एल्स टू टेक इट्स प्लेस. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है, इस सेंटर की जगह लेने वाला और कोई नहीं है. ओके, एज पर डरिडा द प्रॉब्लम विद सेंटर, क्यों वो इसके के खिलाफ है, why he is against this particular strategy is that according to him center के अंदर हमेशा attempt होता है to exclude anything else other than itself. The center exists in the form of an
origin, a truth, a presence, जो भी सेंटर में होती है, it consider itself to be the only truth, to be the only presence, and all the sort of conceptions that lead to a metaphysical एब्सोल्यूटिटी. इस एब्सोल्यूटिटी के खिलाफ ही डिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है. द सेंटर मार्जिनलाइज अदर्स, जो भी उस सेंटर के नॉर्म्स के, जो भी उस सेंटर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है, उन सबको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है और इस वजह से हमारे पास बाइनरी अपोजिट आ जा सकते हैं. लेकिन ये बाइनरी अपोजिट्स हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. दे आर नॉट ऑन इक्वल टर्म्स. द प्रिविलेज्ड एंड द सप्रेस्ड डायकोटॉमी, डायकोटॉमी जो डुअलिटी है, जो डायड है, जो दो एलिमेंट्स हैं फॉर्म बाय दिस डोमिनेंट प्रोसेस, बहुत सारे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करे थे. स्पिरिट ओवर मैटर, स्पीच ओवर राइटिंग, जिसको बार बार डरिडा ने डिस्कस किया है. मेन उनका फोकस है इसके ऊपर. वेस्ट ओवर रेस्ट, नेचर ओवर कल्चर, मेल ओवर फीमेल एंड सो ऑन. Derrida also makes another unique observation. In the absence of a center, अगर हम इस सेंटर को ही हटा दें या जिस origin या presence को हम remove कर दें, everything become discourse. In place of center we have an empty space, and that is why everything there, it becomes a kind of discourse. If there is no metaphysical conception, there is play. Now this is very important term in Derridian philosophy concept. प्ले ही बेसिकली उनका प्ले से मतलब ये है नो फिक्सिटी, नो एब्सोल्यूटिटी, नो सेंटर, नो प्रेजेंस, बट रादर प्ले, एन इनडिफाइनेबल and indeterminate and never ending process to find meaning and to carry it forward. Now play, जैसा मैंने अभी आपको बताया, it is the disruption of presence. This free play becomes essential. Why? There remains the tendency in basically एक human tendency है towards fixity और institutionalization, centralization और totalitarianism. ये जो tendencies है, against these tendencies Derrida is trying to present his play. Basically, philosophy is often biased towards one center. That is why Derrida is saying, because he says that philosophy itself comes from writing, or we should say language. तो वो क्या बोलकर चलते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि जो भी लैंग्वेज से परे हमें जाना पड़ेगा, because language itself create centers. Beginning of a step outside of philosophy. To have decentered concepts, we should come out of philosophy. और यही रीज़न है कि वो ऑब्जेक्शन करते हैं जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, लोगोसेंट्रिसिज्म, फैलोसेंट्रिसिज्म, फोनोसेंट्रिसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म और ईगोसेंट्रिसिज्म. दीज आर डिफरेंट टेंडेंसीज ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफिकल कल्चर, जिसके अंदर स्पीच को या फिर मेल को या फिर सेल्फ को सेंटर में रखा जाता है और बाकी चीज़ों को मार्जिन में रखा जाता है. इनको काउंटर करने के लिए ही हैज़ टू टेक सम इनोवेटिव स्टेप्स. और वो इनोवेटिव स्टेप्स क्या हैं? ही कॉइन्स वेरियस टर्म्स, ही बोरोज टर्म्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स एंड अप्लाइज देम इन वेरी इनोवेटिव एंड न्यू सेंसेस. These terms are not from philosophical fields, they are from outside the philosophical side, and Derrida performed this deconstruction upon these rigid structures which are traditionally constructed by the great philosophers like Plato, Aristotle or Rousseau and Saussure. इन सब के अगेंस्ट वो अपनी नई थियरीज, नई टर्म्स लेकर आता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ दीज टर्म्स. एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज प्ले प्रॉपर फोकस. Okay, the very first term which is very important, which we should understand to understand the deconstruction process, is difference. You should pay attention that the spelling here, the usual spelling
IFFERENCE. Instead, we have ANCE. It is basically a key term in Derridian deconstruction model. और अपने जो ऐसे डिफरेंस इन मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी, इस बुक के अंदर ये ऐसे था, वो ये बोलते हैं डिफरेंस इज नीदर अ वर्ड नॉर अ कॉन्सेप्ट. हमेशा की तरह ही सेज नो, डोंट ट्राई टू फिक्स अ मीनिंग और डेफिनेशन फॉर इट. देयर इज नीदर, इट इज बिकॉज आप इसे वर्ड या कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते. एंड इट इज अ अनट्रांसलेटेबल नॉन कॉन्सेप्ट विच इज डिराइव्ड. कहाँ उन्होंने किस तरह से पन का यूज करा है? फ्रेंच verb differ. Now this verb has basically two meanings: to defer or to postpone, and to differ. जो basic concept it implies, meaning of a subject is a play of difference that is always deferring. Both meanings are applied in one single instance. ये उनका मेन उद्देश्य है कि yes, there are differences, but because there are differences, we cannot reach one particular end. There is always deference to the next signifier. Derrida uses this double meaning to demonstrate the impossibility of arriving at a single definitive determinate interpretation of language because there is always differences. ये तो सॉशरियन मॉडल के अंदर हमारे पास था ही. सॉशर ने खुद ही ये कहा था कि जो लैंग्वेज है, ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया एक्चुअल में, ये फर्डिनांड डे सॉशर के कॉन्सेप्ट जो लिंग्विस्टिक थे और जिन्होंने साइन की डेफिनेशन दी थी कि इट इज कंपोज of signifier and a signified and language is a system of differences. तो उन्होंने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि जो Saussure थियरी थी लैंग्वेज की, उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज लैंग्वेज? इट इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस. ईच टर्म विद इन अ लिंग्विस्टिक सिस्टम derives its meaning or significance from difference from other terms within language. और ये जो डिफरेंस होते हैं, they are not designed by some grammar, they are random. बिल्कुल उनके लिए पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है. The word dark, because we understand what is dark only when we differentiate it with other words, like it may be park, it may be light, it may be red. चाहे हम इसको हम किस सेंस में देखें, चाहे हम स्पैटियल चलें, चाहे हम वर्टिकल लें, चाहे इसको हम सिनोनिम्स के रूप में सब्स्टिट्यूट करना चाहे हम इसके जगह पर नए वर्ड्स या अपोजिट वर्ड्स लाना चाहे, हर जगह देयर शुड बी सम डिफरेंस टू रिप्लेस डार्क. डार्क का मीनिंग तभी तक पॉसिबल है जब तक डार्क बाकी वर्ड्स से अलग है. लेकिन डरिडा शो करते हैं वी कैन नेवर अराइव एट वन फाइनल मीनिंग. रीजन, वर्ड्स डू नॉट कंटेन विद इन देमसेल्फ डेफिनेशन एंड दे कैन ओनली पॉइंट टू अदर वर्ड्स फ्रॉम विच दे डिफर. हम एक डिक्शनरी जब खोलते हैं, सबसे क्लासिकल जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, इट इज विद द एग्जांपल ऑफ अ डिक्शनरी. व्हेन वी ओपन अ डिक्शनरी and we search for a word, what we get another word which describes that word. Now that word is once again opens up. अगर आपको उस word का meaning आता है, you may close the dictionary, but if you don't know the meaning of the meaning, then you will search this particular word. This search never ends. It always lead to another word. When it is used to postpone, that is why we are always deferring to one final stop. The trail of meaning is endlessly deferred through an equally endless chain of signifiers. There is never an end. Always we are moving from one signifier to the signified, which is actually a new signifier in its own case. Derrida applies his term to show the deconstruction of binary of speech and writing. इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था फोनोसेंट्रोसिज्म. फोनोसेंट्रोसिज्म का मतलब था फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फिलोसफिकल सिस्टम, वेस्टर्न फिलोसफिकल सिस्टम, स्पीच इज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रिविलेज्ड देन द राइटिंग बिकॉज स्पीच गिव्स एन आइडिया ऑफ प्रेजेंस. स्पीकर है, प्रेजेंस है, दैट इज वाई इट इज
pure, while writing may be done by some other deputy. It marks some corruption, absence, और ये कॉपी की जा सकती है. That is why it is considered to be contaminated, it is considered to be corrupted by all the philosophers and scholars, thinkers. लेकिन डरिडा अपने ऐसे प्लेटोस फार्मेसी के अंदर नोट करते हैं कि प्लेटो ने फेडरस के अंदर ये स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर उन्होंने राइटिंग को रेलेगेट कर दिया, उसको मार्जिन पे कर दिया, उसको सेकेंडरी प्लेस दे दी. उन्होंने राइटिंग को क्या बताया? इट इज अ मियर इंस्क्रिप्शन, इट इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ थॉट, इट इज जस्ट द इंस्क्रिप्शन कंसिस्टिंग ऑफ एलियन, आर्बिट्रेरी, लाइफलेस साइंस. The logos word in Plato's opinion relevance primarily when it is spoken. word की meaning या significance तभी है जब क्या है, जब वो word spoken है, और इसी tendency को उन्होंने logocentrism कहा. या फिर हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल फिलॉसफी स्पीच जो है वो इंडिकेट करती है प्रेजेंस को, जबकि जो राइटिंग है वो इंडिकेट करती है एब्सेंस को. लेकिन डरिडा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं इस नोशन को अपनी इस टर्म डिफरेंस के द्वारा. वो ये शो करते हैं कि जिन चीज़ों को हम मान के चलते हैं दैट दीज आर क्वालिटीज ऑफ स्पीच विच मेक इट अ प्रिविलेज टर्म, एक्चुअली द सेम क्वालिटीज स्पीच बोरो फ्रॉम द राइटिंग. नॉट ओनली दैट, हम आगे भी जब हम ट्रेस और सप्लीमेंट की बात करेंगे तब इन दो टर्म्स पर और बात करेंगे. इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि स्पीच लैक्स सर्टेन थिंग्स विच राइटिंग हैज़. दैट इज वाई राइटिंग हैज़ इट्स ओन प्रिविलेज, और राइटिंग को आप सेंटर में रख सकते हो. द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस and difference is inaudible. You cannot find which word I am using only by speech, only by listening to it, which reminds us of the importance of writing as a structure. This shows that writing has certain virtues, certain qualities which privileges it even over the speech. The A can be seen but not heard in speech. This is a fact that he uses to subvert or deconstruct the privilege of speech and presence over writing and absence. तो इस तरह से हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ थी, स्पीच सेंटर में हुआ करता था और राइटिंग मार्जिन में हुआ करता था, इन दोनों को उन्होंने सेंटर से हटा दिया है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस. इस डायग्राम से यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट ही बेसिकली मीन्स बाय डिफरेंस. ओके दोस्तों, एक और टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, और वो टर्म है ट्रेस. इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाट इज ट्रेस? देखिए, हम जानते हैं कि ट्रेस का मतलब है रेजिड्यूल, कोई चीज़ जो हल्की सी रह गई है, बाकी बच गई है बट इट इज़ नॉट विजिबल. तो किस खूबसूरती से इस ट्रेस, जो बेसिकली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, उसको डरिडा ने यूज़ करा है. अ ट्रेस इज समथिंग विच अ साइन डिफर्स फ्रॉम. जो डिफरेंस के थ्रू, जो डिफरेंस की वजह से आता है, जब लगातार हम डेफर करते हैं, जब लगातार हम पोस्टपोन करते हैं, एक सिग्निफायर से दूसरे सिग्निफायर पर जाते हैं, हर बार हम एक रेजिडुअल, एक बचा हुआ पार्ट, एक ट्रेस लेकर आगे बढ़ते हैं. इट इज द एब्सेंट पार्ट ऑफ द साइंस प्रेजेंस, या दूसरे शब्दों में कहें, साइन ट्रेस इज द साइन लेफ्ट बाय द एब्सेंट थिंग. वो चीज, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं, एक सिग्निफायर से आगे बढ़ चुके हैं, तो वो सिग्निफायर क्या हो चुका है, एब्सेंट हो चुका है. लेकिन जब हम आगे बढ़े तो उस सिग्निफायर का एक ट्रेस लेकर हम नेक्स्ट सिग्निफायर तक पहुंचे हैं. इट हैज पास्ड ऑन द सीन ऑफ इट्स फॉर्मर प्रेजेंस. जब ये प्रेजेंट था, जब ये सिग्निफायर था, तो अब नेक्स्ट सिग्निफायर सेंटर में आ गया है, उसके बाद अगला सिग्निफायर चेन के अंदर आ जाएगा. हर बार एक ट्रेस, एक रेसिड्यूअल हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं. ईच साइन साइमल्टेनियसली कन्फर्स एंड डिराइव्स मीनिंग विद रेस्पेक्ट टू अदर साइंस. ये हम पिछली बार देख ही चुके हैं. सो दैट एनी गिवन साइन इज टेसिटली इम्प्लाइड इन अनदर एज अ ट्रेस. क्योंकि ये एक एंडलेस चेन है जो लगातार चलती रहती है. इस साइन से जब हम इस साइन के ऊपर जाते हैं और वापस से इस साइन को देखने के लिए नेक्स्ट साइन पे जाते हैं, तो एक हल्का सा ट्रेस इस साइन का हमें यहाँ पे भी मिलता है. इसी तरह से जब यहाँ पर जाते हैं तो इसका हमें यहाँ पर मिलता है. इस तरह से ये चेन जैसे जैसे आगे मूव करती है, सो वी हैव ट्रेसेस ऑफ अदर साइंस इन द न्यू साइंस.
ट्रेस इज जस्ट समथिंग एसेंशियली अनसीन, ये दिखता नहीं है बट एसेंशियली पार्ट ऑफ एनी साइन। या फिर देखिए सॉशर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें क्या था, ए साइन जो था कंपोज्ड होता था एक सिग्निफायर का और एक सिग्निफाइड का। सिग्निफायर जो था वो एक वर्ड हुआ करता था, अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट हुआ करता था, और सिग्निफाइड एक उससे दिमाग में आने वाली इमेज हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हम वर्ड लें, जैसे अगर हम लिखें कॉपी, तो ये जो वर्ड्स हैं इससे हमारे दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट होती है उसकी, और वो हमारा सिग्निफाइड बन जाता है। लेकिन साथ ही आप देखिए कॉपी इज आल्सो अ वर्ब, कॉपी एक वर्ब भी हो सकता है। समटाइम्स इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि वट एवर द मीनिंग, उस मीनिंग को जब हम फाइंड करते हैं तब हम देखते हैं कि नाउन का जो ट्रेस है वो वर्ब के अंदर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू डरिडाज अकाउंट दिस स्ट्रक्चर एक्सक्लूड द नेसेसिटी ऑफ इट्स रिलेशन टू एन एक्सटीरियोरिटी। एक्सटीरियोरिटी का मतलब क्या है, इस कॉपी से परे, इस कॉपी से पहले इसके अंदर जो भी ट्रेसेस थे वो इसका पार्ट है। हालांकि आउटसाइड द साइन लेकिन इनडिसोसिएबल फ्रॉम इट, ये साइन से परे है लेकिन ये साइन का पार्ट है। साइन से आप इसे अलग नहीं कर सकते, साइन से आप इसे रिमूव नहीं करते, इट इज ऑलवेज देयर। और ये ट्रेसेस शो करते हैं कि जो भी चीज आज सेंटर में है वो पहले मार्जिन में थी, आज जो मार्जिन में है वो पहले सेंटर में थी। ये एक एंडलेस प्रोसेस चलती रहती है। According to this principle, no element can function as a sign without referring to another element which itself is not, it's simply present. वो element अभी present नहीं है लेकिन उसका trace present sign के अंदर available होता है। There is something that comes before the sign, जो ट्रेस है, देयर इज समथिंग दैट रिमेन्स आफ्टर द साइन, जो अगले साइन का ट्रेस बन जाता है, और इस तरह से साइन का कंस्टिट्यूशन होता है। ये ट्रेस कन्वे करता है इम्पॉसिबिलिटी को ओरिजिन और सेंटर, बिकॉज देयर कैन नॉट बी वन सेंटर। हर सेंटर के अंदर पुराने सेंटर का ट्रेस रहता है और इट इज द नॉन ओरिजिन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन टर्म को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए डरिडा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने देखी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स डीकंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई। आने वाले लेसन के अंदर हम इनकी और कुछ जो टर्म है, जैसा मैंने आपको बताया सप्लीमेंट है या फिर एपोरिया है या फिर आर्क राइटिंग है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टर्म्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट एनी मटेरियल रिलेटेड टू इट, प्लीज व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।